Bhopal's rise from a state as the seat of Bhopal state, where it was not even the district headquarters. The district headquarters was at Sihor, to the state capital of Madhya Pradesh has been a long story. There have been quite a few people involved in shaping it, or even visualizing it, or making it. We have the first name that comes to mind is Dr. Shankar Dayal Sharma. He was also the chief minister of state. Also the others among the bureaucrats like Mr. R.C.V.P. Narona or Mr. M.N. Butch. They were the ones who actually gave shape to the ideas of the politicians and actually shaped the mindset of the town to suit the requirement of a state capital of the state, which was actually at the middle point, which actually divided India above Madhya Pradesh, Vindhya hills, and below that. So, and when the capital came from below the Vindhyas, from Nagpur to Bhopal, there was a lots of demographic change. There was a lots of physical change in the region. All that has been recorded, and I would suggest that all these things have contributed a lot in shaping our mindsets also. When I, as a person who came to Bhopal 4 years before it became the capital of Madhya Pradesh, realize now that there's been a contribution of all these people, many more people, and we need to record that. We also have to sort of document it and present it for the as a legacy to the people who will know Bhopal later, from where it came and where it has gone. That's my sort of idea, and I think we can continue talking about this, and we can always take it further from where I just suggested. भोपाल के विजन बनाने की जरूरत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भोपाल का जो पिछले 25 वर्षों में विकास हुआ है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। उसमें जो कमियां रह गई है उसके कारण जो अव्यवस्थाएं हुई है, यह हैफेजड विकास हुआ है, उसके कारण नागरिकों को बहुत परेशानी। भोपाल की एक तो स्काई लाइन ही समाप्त हो गई है। आधे भोपाल में जिस तरह के भवन निर्माण हुए उनमें वाटर लॉगिंग के कारण पानी बहुत जमा हो रहा। भोपाल कभी सुंदर शहर था। हम गाड़ियों में गुजरते हैं, हमें लगता है कि शहर अब भी सुंदर है। आप पैदल चल के देखिए, शहर की सुंदरता को ग्रहण लग चुका है। जगह जगह कचरा जमा है। आधा शहर हमेशा खुदा पड़ा रहता है। रात को रोशनियां सड़कों पर आधे शहर में होती ही नहीं है। सड़कों पर पानी लाखों लीटर रोज बह रहा है। न्यूज़पेपर्स में ये समाचार रोज छपते हैं, लेकिन सरकार की किसी भी एजेंसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। एक और महत्वपूर्ण बिंदु की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिस पर तत्काल कार्य करने की जरूरत है, वह है शहर में धार्मिक स्थानों, खास करके मंदिरों का अनधिकृत कब्जा। पूरे शहर में कॉलोनी बसने के पहले मंदिर बन जाता है और वो एक बहुत बड़ा अशांति का कारण बनता है। लाउड स्पीकर बजते हैं, भीड़ जमा होती है, वृद्ध लोगों को सुनने में सोने में परेशानी होती है। इन सब चीजों के ऊपर पहले ध्यान दिया जाए और विजन में भी इसको शामिल किया जाए कि पहले जो हमसे गलतियां हुई है डिफरेंट एजेंसी से, पहले उन गलतियों को ठीक करें, उसके बाद आगे विकास की बात सोचें। थैंक यू। Bhopal is a very beautiful city, a city of hills and your water bodies, and not much of traffic, and especially the new Bhopal area, very well planned, and everything stood very fine actually. But during the after that one, during the last few decades, I find that the Bhopal city is growing too fast,
but without proper planning. It is some places it is too haphazard. I find that the major growth is due to the development done by the private sector and then asking for government infrastructure to be provided to them, to the people residing there. It is not like the government plan where the government has thought of that the basic infrastructure will be provided by the government, that is road, electricity, etc. And then the private sector will develop these colonies and it will be very fine. So there should have been a very well planned roads and other infrastructures, but that is not happening. We find there are roads which are all of a sudden bending or someplace, and that is causing accidents also. Nowadays, too much of accidents is also going on. My vision is that the Bhopal, whatever the development is, that should be very well planned. And it is not that somebody is sitting in the computer and seeing the remote sensing data and planning that one. They should have a field check actually and then plan that one. And another thing, that there should be a proper plan for saving the water bodies of Bhopal. We only talk of upper lake, we are not talking of other water bodies in Bhopal. And when we call Bhopal as a city of lakes, now there is Bhopal, upper lake and lower lake is a Ramsar site. Now government is thinking to designate this city as a wetland city. But the wetland conservation plan is based on the wise use of the water bodies actually, and that is not happening. I feel that if the government is serious to declare it as a wetland city, they must recognize the importance of wise use of wetlands as well. There are two aspects I am talking of. That is one of the traffic system and the roads etc. and another is the protection and the conservation of the water bodies. Thank you. देखो, भोपाल हिस्टोरिकली एक अच्छा कल्चरल हेरिटेज सिटी है. यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी बहुत है, अच्छा लेक्स है, इट इज़ ए सिटी ऑफ लेक्स. और इसका जो टोपोग्राफी है, हिल्स है, प्लेट्यू है, वाटर बॉडीज़ है. सो बेसिकली इट इज़ ए नेचर बेस्ड सोसाइटी सिटी. सो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसका ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी नष्ट नहीं होना चाहिए. तो उसको नज़र में रखते हुए हमारा भोपाल का विज़न करना चाहिए. अभी जैसे हम लोग कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे या सिटी जिस तरह का फैल रहा है उसको नज़र में रखते हुए हमको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जैसे नेचर का दोहन ना करें. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे ट्रीज़ हैं या वाटर बॉडीज़ हैं या ये सारे जो है इसको संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है. भोपाल जैसे यूनिक सिटी अभी इंडिया में कहीं नहीं है. कारण एक सिटी में आपका वन विहार है, जैसे प्राकृतिक यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड यू कैन सी द एनिमल्स विद इन एनक्लोजर, दे आर मूविंग फ्रीली. ऑन द अदर साइड देयर इज अ ब्यूटीफुल लेक and then again you have up and down hills, plateau, some of the education institutions located in the hills like NIT or IFM or secretariat for that matter. So this should not be compromised and trees must be conserved and protected for maintaining its ecosystem. That is very important. 2047 में हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए. आप देखिए मध्य प्रदेश का एजुकेशन सिनेरियो आप देखेंगे, भारत के बाकी जो राज्य हैं स्पेसिफिकली साउथ और ईस्ट और वेस्ट काफ़ी पीछे हैं. स्कूल एजुकेशन एक हद तक ठीक है बट हायर एजुकेशन बहुत ही ख़राब है इन द सेंस यू डू नॉट हैव वेरी गुड क्वालिटी इंस्टीट्यूशन. अभी भोपाल में नेशनल लेवल बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आए हैं, जैसे IFM है, NLI है, ISER है, NID है,
या NIFT है, जुडिशल एकेडमी है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन आए हैं. बट एट द सेम टाइम जो हमारे कॉलेजेस हैं एंड जो लोकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, ये सब में जो क्वालिटी है इसको एनहांस करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब मध्य प्रदेश के बच्चे जब बाकी बच्चों के साथ जब कॉम्पीट करते हैं काफ़ी पीछे रह जाते हैं. अभी थोड़ा सा सुधार हो रहा है लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, बिकॉज मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ के बच्चे हमेशा अच्छा करना चाहिए. उस तरह से मेरे ख्याल से एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे फैकल्टी होना चाहिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और पढ़ाई जो करिकुलम है उसका काफ़ी परिवर्तन करना पड़ेगा. नेशनल लेवल की जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं उसको एक बेंचमार्क करके हमको आगे बढ़ना चाहिए. देखो भोपाल बड़ा अच्छा शहर है, इसका जो रिचनेस है उसको हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. जैसे कल्चरल हेरिटेज है, हमारे यहाँ भारत भवन है, रविंद्र भवन है, शहीद भवन है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलता रहता है. देन हम लोग का ना जो थिएटर ट्रेडिशन है वो भी अच्छा है. देन भोपाल के वाटर बॉडीज़ हैं, बढ़िया हिल्स एंड प्लेट्यू अच्छा है. ये सब चीज़ को हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बदलाव लाना चाहिए. बदलाव कहाँ लाना चाहिए? टेक्नोलॉजी में बदलना चाहिए. हम लोग इसको स्मार्ट सिटी करना चाहते थे तो टेक्नोलॉजी से फॉर एग्जाम्पल वाईफाई फैसिलिटी सब ला. पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक इज टेरिबल इन भोपाल. ट्रैफिक मैनेजमेंट वेरी वेरी पुअर. यहाँ इतना ट्रैफिक वायलेशन होता है बट कोई पनिशमेंट नहीं होता है. तो ट्रैफिक मस्ट बी इम्प्रूव्ड एंड ट्रैफिक नेटवर्क शुड बी modified. Then transport, public transport for the common people must be improved. Thirdly, natural base जो हमारे संपत्ति है उसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वैसा रहना चाहिए. Fourthly, education is important. Bhopal should be known as education hub because we have good institutions. तो नेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो उनका बदलाव भी होना चाहिए, तभी तो एक अच्छा शहर होगा. बिकॉज एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी. इट इज नॉट ओनली फॉर द रिच पीपल. एवरी कॉमन सिटीजन शुड हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी एजुकेशन. भोपाल में बहुत ज़रूरी है. और एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ कई साल से रह रहा हूँ, जैसा आपने पूछा 40 साल हो गया. एक चीज़ है, कई सारी चीज़ों में हम लोग बड़ा अनप्रोफेशनल है. एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है भोपाल में. वही जो रूरल अर्बन का जो मेंटेलिटी है उसको हमको चेंज करना है. आप बड़े शहर में जाएंगे देखिए एक प्रोफेशनलिज्म है वो हमको लाना है. मैं जो किताब लिखा है, एडिट किया है अलॉन्ग विथ सम यूरोपियन ऑथर्स के साथ, दैट इज स्मार्ट सिटीज इन एशिया एंड यूरोप. तो उसमें हमने इंदौर के ऊपर लिखा था बिकॉज इंदौर इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सिटी मध्य प्रदेश में, बिकॉज दैट इज द सिटी 7th कंसेक्यूटिव टाइम क्लीनेस्ट सिटी का टैग उसको मिला है. प्लस उसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है. भोपाल अभी भी इंदौर से पीछे है एज फार एज स्मार्ट सिटी इज कंसर्न. तो भोपाल को हमको देखना पड़ेगा हुए हम लोग कहाँ फेल हुए हैं. जैसे कई सारे जैसी चीज़ें हैं जो रिस्टोरेशन ऑफ मोनूमेंट्स फॉर एग्जांपल इन इंदौर में अच्छा किया है. उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा किया है. उन्होंने जो बाकी जो वेस्ट डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा किया है. क्लीननेस का काफ़ी ध्यान दिया है. आई थिंक भोपाल में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. अभी भी भोपाल शहर में ये अच्छी तरीक़े से हम नहीं कर पाए. बहुत से आप हाउसिंग सोसाइटीज में जाएंगे देखेंगे दे आर नॉट एबल टू डिस्पोज द वेस्टेज इन प्रॉपर मैनर. कौन सा है ग्रीन वेस्ट है, कौन सा सूखा जो है, गीला है. प्लास्टिक अभी भी बहुत प्रचलन है. अभी भी हम लोगों ने पॉलीथीन कल्चर से बाहर नहीं आ पाए हैं. तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से करना पड़ेगा. स्मार्ट सिटी खाली स्मार्ट सिटी कहने से नहीं होता है. स्मार्ट सिटी ऑल्सो स्मार्ट थिंकिंग चाहिए, स्मार्ट एटीट्यूड चाहिए, स्मार्टली वी शुड बिहेव, है ना. वो जो सिटीजन्स में एक परसेप्शन नहीं है कि हम लोग अपना शहर को कैसे अच्छा रखें, वो चीज़ अभी यहाँ नहीं है. बट मैंने देखा है इंदौर में किसी भी दुकान में मैं गया तो मेडिसिन देना है तो दे विल पेपर कवर में देते हैं, लेकिन भोपाल में अभी पॉलीथीन निकाल कर आपको देंगे. तो ये जो सारी चीज़ें, इस सब चीज़ का बदलाव बहुत ज़रूरी है. स्मार्ट सिटी के नाम से जो बाकी जो चीज़ें हम उसका कोई कुछ चेंज नहीं लाएंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, स्मार्ट सिटी का कोई मायना नहीं रखता है. तो स्मार्ट सिटी के नाम से कोई मतलब ही नहीं यदि हम लोग ये सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे. अभी जो भी चीज़ें मैंने बताया, स्मार्ट सिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी थिंग्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल थिंग्स. उस हिसाब से भोपाल का एक अच्छा शहर बना सकते हैं. भोपाल वेरी यूनिक सिटी, मैं बोलता हूँ एज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी
फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑप्शन था बेंगलोर में रहने के लिए, हैदराबाद में रहने के लिए, बट मैं भोपाल में रहने के लिए प्रीफर किया। देखो मैं ओरिजिनली आई एम नॉट फ्रॉम मध्य प्रदेश, मैं बंगाली बाय बर्थ हूँ, पढ़ाई लिखाई में उड़ीसा में और दिल्ली में बेंगलोर में किया, बट भोपाल मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज भोपाल में मैं इतने साल से रहा हूँ। तो इस शहर को मैं नहीं चाहूँगा कि नष्ट हो जाए, इसका जो धरोहर है उसको हमको संभाल के रखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भोपाल में रहता हूं, यानी कि भोपाल वासी हूं। जब भी हम लोग अपने देश के दूसरे नगरों में जाते हैं और यहां तक कि विदेशों में जाते हैं और फिर जब लोग पूछते हैं कि आप भारत में रहते कहाँ हैं, तो हमारा जवाब होता है स्वाभाविक है कि भोपाल में रहते हैं। और जैसे ही भोपाल का नाम सामने वाला सुनता है, उसकी आंखों में जो एक चमक उभरती है उसे आसानी के साथ पकड़ा जा सकता है। तुरंत उनके मुंह से निकलता है, अरे वाह, आप भोपाल में रहते हैं। भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है और वहां के लोग भी बड़े अच्छे हैं। सच पूछिए तो ये जो दो वाक्य है ना, कि भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है और भोपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, ये भोपाल की अपनी पहचान है। और ये जो पहचान बनी है ये एक दो दिन से नहीं बनी है, एक दो साल से नहीं बनी है, एक दो दशक से भी नहीं बनी है, सैकड़ों साल से ये पहचान बनती है। किसने बनाई है भोपाल की इस पहचान को? मुझे दो बातें बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं इस संदर्भ में। पहली बात है नेचर। सच पूछिए तो भोपाल एक नेचुरल सिटी है। यहाँ की पहाड़ियों को देखें, यहाँ की झीलों को देखें, यहाँ की हरियाली को देखें और सबसे बड़ी बात है पूरे देश में इसके लोकेशन को देखें। ये किसी ने किया नहीं है, अपने आप हुआ है। नो डाउट कि झीलें वगैरह बनाई गई होंगी, जो उसकी आत्मा है, इसकी जो हरियाली है वो इसका सौंदर्य है, जो पहाड़ियों के उतार चढ़ाव है ये इसके कर्व है, इसके सौंदर्य में लगे हुए चार चांद हैं। और सच पूछिए तो आज मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मानो कि इसके सुंदरता को कोई शायद नजर लग गई हो। जब हम झीलों की ओर देखते हैं तो कुछ झीलें तो बिल्कुल गायब होने के करीब हैं, जो है भी इंक्रोचमेंट के गिरफ्त में आ रही है। ये क्या हो रहा है? हम ये नहीं समझ पाते हैं कि यदि हम इन्हें खत्म कर देंगे तो इन्हें लाना आसान नहीं होगा, और अगर हम ले भी आएंगे तो इनके साथ हम उनकी उद्यमियों को कहां से जोड़ेंगे जो इसकी पहचान है और जिनकी वजह से पूरी दुनिया में ये नगर याद किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम 2047 के भोपाल के बारे में सोचते हैं तो हमें तीन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए। नंबर एक, ये शहर जो पूरे हिंदुस्तान के सेंटर में लोकेटेड है, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब मैं ताकत की बात कह रहा हूं तो आप इसे आर्थिक ताकत भी कह सकते हैं, राजनीतिक ताकत भी कह सकते हैं, सांस्कृतिक ताकत भी कह सकते हैं, जो भी कह लें। क्योंकि इतने बड़े देश में किसी नगर का मध्य में होना ये आसान सी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। इसका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं? डेफिनेटली अगर हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जाएंगे तो भोपाल अपनी सुंदरता खो देगा। यहां तक कि जो कहा जा रहा है कि भोपाल के लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद उसमें भी कुछ बाधा आने लगेगी। तो फिर किया क्या जाए? मुझे लगता है कि भोपाल को हिंदुस्तान के सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इस रूप में कि 100-200 साल के बाद इसे हिंदुस्तान के कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसे शहरों के रूप में जाना जाए। दूसरी बात, सांस्कृतिक केंद्र। भारत भवन भोपाल की आत्मा है, भोपाल का स्वर है, और सच पूछिए तो भोपाल के नृत्य की ध्वनियां और भोपाल के संगीत की स्वर लहरियां हैं। कैसे हम भोपाल के भारत भवन में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में भोपाल के कार्यक्रमों की झलक दिखाई दे, यानी कि इसे बहुत अच्छे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। तीसरी बात, जब हम ये दोनों काम कर रहे हों तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भोपाल का जो अपना सौंदर्य है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसमें कोई बाधा न आने पाए। दिखाई दे रहा है अभी तो कि भोपाल की जो स्काई लाइन है वो गायब होती चली जा रही है। क्या सच में ऐसा किया जाना जरूरी है? भोपाल के चारों ओर जमीन ही जमीन है। हम ऊंचाई की तरफ न जाकर के क्या हम इसका विस्तार जमीन के पैरेलल नहीं कर सकते? उससे इसका सौंदर्य बचा रहेगा। और दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं
जिन्होंने अपने यहाँ इस तरह के कानून बनाए हैं कि जो बिल्डिंग्स बनेंगी वो मल्टी स्टोरीड नहीं होंगी या एक सीमा के बाद ऊंचाई ग्रहण नहीं करेंगी। भोपाल के विकास के बारे में सोचते समय इस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल के विकास के इमारत की नींव इसके किसी भी तरह के विनाश पर न रखी जाए। यदि हम ऐसा कर सकेंगे तो भोपाल का इतिहास, भोपाल की स्मृतियां, भोपाल के संस्मरण, भोपाल की खूबसूरती, इन सब के साथ हमें समझौता करना पड़ेगा और व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी विकास के लिए कम से कम इनसे समझौता करने की सलाह नहीं देता और न इसके लिए मैं तैयार हूं। ईश्वर करे कि भोपाल भोपाल ही बना रहे, मुझे ये मंजूर है। नमस्कार। नमस्कार। भोपाल विजन 2047 आने वाला है और उसकी एंटिसिपेशन में एज पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, एज सिटीजन्स, एज पीपल हु लिव इन दिस ब्यूटिफुल सिटी, all of us are excited and we have things to say and there are things that we love about our city and we would like to place before the government. So भोपाल एक बहुत ही सुंदर शहर है। ये एक we are expecting news that ये एक wetland city जल्दी कहलाएगा और ये जो हमारा भोपाल का तालाब है भोजताल, जो 1000 साल पुराना है, ये शहर की स्मृति भी है, उसकी जान भी है, उसकी एसेंस है, उसकी पहचान है। इस तालाब के आसपास हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। वेटलैंड सिटी होने के नाते यहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं, बहुत सारा नॉन ह्यूमन नेचर है, पॉलिनेटर्स हैं, फ्लाइंग फॉक्सेस, ऐसा कोई बाशिंदा नहीं होगा भोपाल का जो शाम को उस नज़ारे से वाकिफ़ नहीं होगा कि हज़ारों की तादाद में फ्लाइंग फॉक्सेस, बैट्स तालाब के पास आते हैं पानी पीने के लिए और गर्मी से राहत पाने के लिए, और इतना सुंदर सनसेट होता है भोपाल के तालाब पर। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम हमेशा के लिए रखना चाहते हैं और भोपाल का तालाब सभी के लिए बना रहे, उसका जो एज है हमेशा पब्लिक स्पेस बना रहे। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत शहरों में अब नहीं है। सो ये भोपाल की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत कुछ देता है ये तालाब, और इससे हमें ये भी समझ आता है कि नेचर इज नॉट टू बी वॉच्ड इन अ जू। वी डोंट इन भोपाल वी डोंट नीड टू गो टू अ जू टू सी नेचर, वी डोंट नीड टू टर्न ऑन डिस्कवरी चैनल टू सी नेचर। नेचर इज अराउंड अस एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस नेचर, पर्टिकुलरली बिकॉज जो इंसान, जो ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच में एक आर्टिफिशियल दरार आ गई है जिसको हमने इन अ वे कोडिफाई किया है अपने नज़रिए से, that we think of nature as something that is outside of our lives, as something to be seen on discovery. But in fact, if you look at a city like Bhopal, where almost everybody has a beautiful garden, ऐसा शायद ही कोई घर होगा इस शहर में जिसमें बहुत सुंदर एक गार्डन नहीं हो, जहाँ पे मेरे गार्डन में पर्पल सनबर्ड्स आती हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के पक्षी आते हैं। तो दैट इज आवर डेली कॉन्टैक्ट विद नेचर, एंड द ओनली रीजन व्हाई दैट डेली कॉन्टैक्ट विद नेचर exists is because of the legacy of nature in the form of large trees, in the form of forests, in the form of grasslands, in the form of places that are still untouched, and these are very important, I would add. पिछले कई सालों में हमने सुना है there are reports that more than 3 lakh trees have been cut, and these are trees that are very large, that must have hosted a lot of biodiversity. That the benefits of that was not just that they protected us from the searing heat of summer, but that also they provided space for countless organisms to exist between their roots, their trunk, their bark, their branches, their leaves, and so many other things. अगर ये पेड़ नहीं हो किसी भी शहर में तो now there is a lot of science, scientific research is telling us that बारिश भी नहीं आएगी. So unless there are trees, trees exert a gravitational pull on clouds, and that's how rain is formed. Bhopal till a few years ago never experienced the urban heat island effect, which is a phenomenon that is so common and it is so pervasive and pernicious, exists in many cities around in India and abroad. So
the place, our cities are becoming, as climate changes, climate changes, and as climate change progresses, our cities are becoming more and more unlivable. And today, for Bhopal Vision 2047, the primary goal ought to be how to make the city more livable, how to increase the quality of life, and how to use finance and capital to serve the needs of the quality of life, and not the other way around. So the quality of life that exists in the city is not in the service of capital, but actually capital and finance ought to be in service of the quality of life for every citizen of the city, not just for the elite few. So today, our vision towards our legacy of nature, which is the Bada Talab, which is Van Vihar, and the forested institutional areas, the mountains, the rivers that we have in Bhopal, is really a vision that sometimes is a very touristic vision. We want to develop places, and while there is a need to develop places so that people can view and take selfies and can take attractive photographs, there is also a need to protect that kind of nature which exists in intimate balance and in intimate relationship with ourselves, with our lives, because without that our lives would be actually very, very mechanical and very artificial, and they would lose a lot of quality. So from the viewpoint also of children, of people who are aged, of people who are recuperating, nature is shown to have many, many kind of restorative benefits. And so the one certain milestone that the Bhopal Vision 2047 ought to have is that it ought to protect and to enhance the quality and the availability of nature in public spaces and to every citizen in Bhopal. Thank you very much. The theme of this festival and colloquium is Vision Mission Bhopal 2047. The point is, why do we need a mission and why do we need a vision? Are we the first persons to demand it? Not exactly. About a decade ago, Mr. Buch, the famous town planner from Bhopal, had demanded that there should be a vision. Now it's up to us to take his legacy forward. Before we do that, we must concentrate. What is a vision? A vision is an integrated image of the entire city, projected onto future and a larger space. How is that different from a plan? A plan is merely an extrapolation of the data available, something that is available in the public domain. When should a vision be made in that sense? A vision has to be made before the plan. Who should be making a vision? It should be thinkers, thought leaders, intellectuals, and so on. Plan is left best to experts and bureaucrats. How should a vision be made? A vision is made by considering the indices of the city and the intelligences of its people, whereas a plan is made by taking the data and information. A plan by its nature is extrapolatory. It sort of inflates, whereas a vision expands. What happens if you don't have a vision? As the saying goes, without a vision, a plan is lame. Without a vision, a plan is blind. And without a plan, a vision is lame. The next question is, where should a vision be made? A vision should be made in at least two places, in the conference halls as also on the ground reality, in the ground slums and grassroots situations. By combining both of them, a vision is moderated. Based on the above description, what is the tentative vision for Bhopal? Bhopal has to be an optimal city. Just as Mumbai is labeled as a maximum city, Bhopal could be a city which combines the best of livelihood and based on the above, what is our vision? Our vision is that Bhopal should be an optimal city, just as Mumbai is a maximum city. It should have the right balance of livelihood and lifestyle. Bhopal ought to be the best capital city beyond merely being the cleanest capital.
Bhopal could also be developed as a central capital region on the lines of national capital region. That is merely extending Mr. Babulal Gaur's idea of having a second national capital. He used to harp upon this idea for years altogether. Bhopal has to be established as an intellectual hub, just as Bhopal was initiated as a creative hub in 1980s with the establishment of Bharat Bhavan. Bhopal can be the most livable city. It already is amongst one of the most livable cities, but we can make it the most livable city. Bhopal can also be a knowledge city. Kochi is already declared a UNESCO knowledge city. For its ideal development, Bhopal should have a bicameral legislature, bicameral municipal corporation. Its economy should develop on private people's partnership. Its economy should develop in public-private people's partnership, PPPP. Bhopal could be a hub of stand-up cum startup capital, stand-up cum startup units. Bhopal can be a sporting and cum gaming hub, not merely sporting, it can focus on amateur sports, traditional cum futuristic sports too. मुख्यतः जो भी अच्छे एवं विशेष पहलू हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, संरक्षित किया जाए। प्लान से पहले किस पहलू को हर हाल में बचाना है, प्लान के बाद क्या नहीं बनाने देना है, किन लोगों के द्वारा मिशन तैयार किया जाए, जनप्रतिनिधि, एक्टिविस्ट, कलाकार, सर्जनधर्मी, साहित्यकार आदि। मिशन के अभाव में जो भी गैर नवीकरणीय पक्ष हैं, नॉन रिन्यूएबल, एक बार खत्म तो दोबारा नहीं। भौतिक जैसे खनिज और सांस्कृतिक जैसे कि बोलियां। कहाँ मिशन की जरूरत है? मिशन जमीनी स्तर पर तैयार होता है। कैसे? शहर और नागरिकों की विशेष पहचान के आधार पर उसे बचाने के लिए मिशन बनता है। मिशन का महत्व सबसे ज्यादा किसके लिए है? मिशन का सर्वाधिक महत्व हाशिए के लोगों के लिए है। उपरोक्त के आधार पर हमारा मिशन क्या है? त्रिवेणी साहित्य को बरकरार रखना, हिंदी, उर्दू एवं जनजाति साहित्य, वाचिक परंपरा को भी, थोड़ा संस्कृत का पुट भी, हेरिटेज को बचाना। शिवराज सिंह जी ने हेरिटेज हाईटेक सिटी की बात की थी। क्वीन बेगम के शहर की पहचान बनाए रखना। भोपाल के वेटलैंड्स को बचाना, शहर के पर्यावरण को बचाना। भोपाल में माकूल वेस्ट मैनेजमेंट। भोपाल को एक सृजनात्मक शहर बनाना, एक तरह से भारत भवन की परंपरा में अन्य पक्ष जोड़ते हुए आगे बढ़ाना। भोपाल को मध्य भारत का एक हेल्थ हब बनाना, जल भराव मुक्त शहर, झुग्गी गुमटी मुक्त शहर। Based on the above, we'll come up with some broad aims and goals. To make it clear, we are not into policies or programs. That is best left to experts. But as thought leaders, we have some rough and ready aims and goals. Some of them could be that Bhopal could be the best central capital region. The kind of hinterland it has gives it a great opportunity. It can become the best mid-sized city in India. We would try and push for a metropolitan plan beyond the Master Plan 2047. In fact, that is a prerequisite for having a metro in a city. We would also look forward to make it some kind of a self-reliant city-state, Atmanirbhar, not exactly Atmanirbhar, but for its needs, it would be self-reliant, Atmanirbhar, but for its wants, it has to be mutually dependent, Paramatmanirbhar. Bhopal can become the best model for a PPP city. It can also have the best model transport system, given that it has a hilly terrain. If it can manage its transport well, that can serve as a model for others. इन सब के आधार पर हमारा लक्ष्य होगा ज़ीरो वेस्ट सिटी, यूनेस्को हेरिटेज सिटी, कार्बन न्यूट्रल सिटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट सिटी, वेटलैंड सिटी, क्लीन एंड ग्रीन सिटी, क्रिएटिव सिटी,
भोपाल को एक हेल्दी सिटी बनाना विश्व स्वास्थ्य संगठन की तर्ज पर। अभी मात्र एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। अगले कुछ महीनों तक चर्चा एवं वार्ता के बाद 1 नवंबर को भोपाल स्थापना दिवस पर फाइनल नागरिक विजन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। All said and done, what is the USP of this approach? This approach is that while in plan, there are always dark areas. That's why you have a section of non-plan. Our thesis is that non-plan or dark areas are equal to the planned stuff, since that ratio is not meant. That is why always at the end of the day, plans backfire, or halfway through they go haywire. But with a vision, there are no opposites. A vision does not need a non-vision. Other section is that it is not merely based on data and information, but on indices of Bhopal and intelligences of Bhopalis. For instance, the index of Bhopal, the basic identity of Bhopal, it's a city of lakes and hills, a city of mosques and museums, a city of parks and forests, is taken note of while making the vision, as also the leisurely attitude of Bhopalis, their multi-dialect language, sort of pidgin, Urdu, Hindi and Hindustani and Hinduvi combined, with a bit of Chhattisgarhi and Gondi thrown in. All said and done, this is merely a draft. After wide consultations for the next couple of months across various citizens and residents in halls and bastis, the final Bhopal Citizens Vision would be presented on November 1st, Bhopal Foundation Day.